आज हम दिल्ली के मजनू का टीला गुरुद्वारा साहब में उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं टर्मिनेटर्स दी पेडलर्स ग्रुप के सदस्य। पिछला वीडियो हमने इन्हीं ग्रुप के ऊपर बनाया था और आपने वो बहुत पसंद किया और उसमें कई सवाल भी पूछे हैं, तो हम यही सवाल आज इस ग्रुप से भी पूछेंगे। और ये भी आपको याद होगा कि इस ग्रुप ने कुछ दिन पहले दिल्ली से नांदेड़ साहब और वापस 1400 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की थी। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर उन्हें सदस्यों को और उनके परिवार के साथ स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया है। चौथी राइड साड़ी तख्त श्री दमदमा साहब सी। उस तो बाद सानू याद ध्यान आया कि ਅਸੀਂ 3 तख्त कर चुके हैं कि गुरु महाराज ने अरदास की सानू कि बाकी के ਜਿਹੜੇ 2 तख्त भी साइकिलों ਤੇ कराओ। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਰਹੇ। ਦੂਰ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਆਏਗਾ दब के साइकिल चलाएगा, जे पिछों दिक्कत होगी नहीं चला पाएगा, फिर दब के चलाएगा, फिर ज्यादा के चलाएगा, मैं कुछ ज्यादा ही तो फिर भी दब के चलाएगा, ज्यादा दबेगा, वो भी रिस्की हो जाएगा, और रिस्की हो जाएगा फिर। ते साडी डी बैक एंड टीम हैगी है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਜੀ ਖੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਖੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜੀ? ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। पहले तो 12 बंदे गिना इन्हां दे, पहले 12 बंदे पहले प्लस 12 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਟਾਰ ਰਾਈਟ। ਆਹੋ ਪੂਰੀ ਰਾਈਡ ਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਬੇਤੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਹਿائش ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਖੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। साइकिल पे जाना ना आपसे। मनप्रीत सिंह जी, आओ जी। मनप्रीत जी पहले सपोर्ट ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਟੀਮ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਕ ਐਂਡ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਔਖਾ ਹੀ। ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਨਾ, ਚੜਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਓ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। रुपए पैसे वाले आओ जी। राइड पिछू शुरू होती है, इन्हां दा काम पहले चालू हो जाता है। पहले पैसे इकट्ठे करने शुरू करते हैं, शुरू तो राइड खत्म होने के बाद इन्हां दा काम चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अजे तक चलता पे जी, अजे तक चलता पे, अजे तक चलता पे। भाई साहब ही चलांगा 2-3 दिन बाद मैसेज आएगा खत्म हो गया। हां जी। और परमिंदर भाई ओके ठीक है, करे ना फास्ट राइड बहुत बढ़िया। चालू ला लेके आओ जी। हां जी। कौन सी डेजी? हां जी डेजी। आओ बच्चे, वो चल गई बुला लो आगे आजा। वो एनी विद्या तालियां बजाती थी। वेट करो जी, वेट करो। आगे आगे बच्चे आ जाओ। शाबाश शाबाश आ चल खड़ी जी, आ जाएगा चल सामने इधर ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਪੂਰਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੰਕਚਰਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਪੰਕਚਰ ਸੀ? 30-40 ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ।
बड़ी शब्द है। इंप्रेस कर रहे हैं। आ जाओ। स्कीम है बहुत ਵਧੀਆ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੇ। पंचरा के बावजूद हाँ जी पंचरा के बावजूद ਪੰਚਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਈਡਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ 4 ਤਖਤ ਕਰਾਤੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰੇਜ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੀ ਖਿੱਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। लेकिन उस दिन बड़ा अच्छा लगा जब आए सी कि हाँ सपोर्ट आ गया उन ਕੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਸਟ ਰਾਈਡਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। नहीं यार देखता है कि रोकना कितना है। हाँ सब तो मेन काम है। चुंडी कट ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਆਓ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਸਾਈਕਲ ਦਮ ਤੋੜੀ ਨਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਚਰ ਸਾਈਕਲ ਪੰਚਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਟੱਲੇ ਨੇ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਬੱਚੇ, ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਮ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ, छोटी राइड की थी लेकिन थैंक यू। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਇੰਕਲਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ फैक्ट है गल तो फैक्ट ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਜਸਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਰਾਈਡਰ ਜੀ। आ गई। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਰਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਰ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। डेली साइकिल साफ कर रही है। ਸਹਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਈਡ ਪੂਰੀ डेली पूरी साइकिल साफ कर रही है। डेली पूरी साइकिल साफ कर रही है अपनी। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ आओ जी। वाह गिल साहब सारे स्क्वाश का ही है जी। ग्रेट। ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। 3 ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਆਓ ਜੀ। आओ जी। वाहिगुरू जी का ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਭੋਪਾਲ ਉਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ।
ਤੇ ਆਪ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਾਰਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰੇ ਸਰ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੋਪਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੰਦੇ 3 ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਪੇਅਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈਕਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਂਡ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਥਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਮੋਹਨ ਮਸਤ ਆਪ ਆਓ ਨਾ, बॉक्स में बॉक्स ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਡਰ ਹੈ ਜੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਟੀਮ ਦੇ, बहुत सपोर्टिव बहुत सपोर्टिव ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਬਹੁਤ मुझे दे दो। रविंदर भाई आओ जी आओ। नहीं दे रहे चलाइए साइकिल चलाइए साइकिल थोड़ी भी चलाइए तो कामयाबी है, आए थे हो ना बहुत हरप्रीत सिंह जी आओ जी, क्या बात है। ये तेरा नहीं मेरा ही है। ठीक है तो अपने रख अपने को रख। ये थोड़ी मेहनत है जी। बहुत बढ़िया राइडर ने शुरू ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। पूरी ऑडिट ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਡੀਟ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਸਭ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਜੀ, ਸਭ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਥੈਂਕ, ਪੂਰੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਥੈਂਕ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਨ ਸਭ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ। यंगेस्ट राइडर ਬਾਤ ਦੱਸਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿਓ। ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਰੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਥ ਉੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਬਿਨਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗਾਰਾ ਕਰ ਦੋ ਜੀ। जोश आ रहा है। ग्रोवर साहब, जसमीत सिंह ग्रोवर आओ जी। आओ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾਣਾ। ਆਓ ਜੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਆ ਗਏ ਕਿਧਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਇਕੱਲੇ ਆਓ ਫਿਰ ਆਓ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਟੀਚਰ ਰਾਈਡਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। डे 1 हो गया, डे 1 बहुत बढ़िया हिट सीगा। डे 2 कब ले आ रहे हो? ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, डे 2 मैं क्या ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੰਦਰ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਲਓ ਜੀ। ये हिलते बड़े फास्ट है किने। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਰਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। लीड करते हैं ये भी लीड करते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ? ਆਓ ਜੀ। जोश से भरे हुए अमृत पावल जी। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी अमृत और भाजी स्वाति ना यार
देओ यार क्या कहो यार फिर चक्कर मार दे मैं अपने हत्थी ले की थी फिर चक्कर मार दे अंदर गए रूट रह जाना अगली बार रूट रह जाना हां रूट रह जानी है हां अब ले जाओ बड़े प्यारे प्यारे रूट प्लानर है जी रूट प्लानर कितने रुकना कितने नहीं और एक्सीलेंट एक्सीलेंट मैं यार हैरान हो गया यार ये जी उन्हें लीड ट्रॉफी देने वास्ते ना सारे ड्राइवर आए हो सारे पर काम सब आए नहीं तो समझ लगा सारे तो समझ लगे और ड्राइवर इंटर्स है ये तो सामने आओ इधर जी सुजीत वीर जी बोले सोनिया कान खुल जाते तुम्हारा ट्रॉफीज और साइकिल। और अब लंगर की बारी है। लंगर के बाद हम उनसे बात करें। टर्मिनेटर्स द पेडलर्स ग्रुप के सदस्य बड़े बड़े ओहदों पर कार्यरत हैं। कोई प्रोफेसर है, इंजीनियर है, आईटी स्पेशलिस्ट है या फिर सीए है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। आज हम ऐसे में बात कर रहे हैं। हमने अपना जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें कई लोगों के सवाल आए हैं हमारे पास, उन्होंने बहुत लाइक किया उसमें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने एक सवाल ये उठाया कि ये कहा गया था कि ये जो आप यात्रा करते हैं ये इससे फिज़िकल फिटनेस होती है। तो आप ये बताइए कि फिज़िकल फिटनेस के अलावा क्या मेंटल फिटनेस में भी साइकिलिंग कुछ सहायक होती है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखिए सर, मेंटल फिटनेस होगी तो तभी फिजिकल फिटनेस होगी, क्योंकि अगर बंदा मेंटली बीमार है या सिक है तो वो फिजिकली परफॉर्म नहीं कर सकता। बेशक अपना प्रोफेशनल ड्यूटी है, बेशक सोसाइटी की ड्यूटी है। सो ये जो साइकिलिंग है इससे फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि स्पिरिचुअली भी हमें जो ये जर्नी है हमारी लाइफ की, तो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। तो ये साइकिलिंग के थ्रू और सिखी स्वरूप को जो संभाल हो रही है, टर्मिनेटर ग्रुप साबित सूरत रखने को प्रमोट कर रहा है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है जो इस राइड के जरिए हमें। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं साइकिल राइड करता हूँ, जो आपने बोला कि जो मेंटल अपना है फिटनेस, मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। कोई गुस्से वाली बात पे भी गुस्सा नहीं आता, इतना अच्छा होता है। जो मेंटल फिटनेस होती है ना, फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये बताइए कि साइकिलिंग करते समय आपकी सुरक्षा का इंतजाम क्या होता है? तो हमारी सुरक्षा जो है, पहले हम गुरुद्वारे जाके सुबह राइड शुरू से पहले अरदास करते हैं। जो हमारी अभी राइड हुई थी जो 30+ किलोमीटर की, पहले हमने उससे पहले एक राइड प्लान करी थी जो कि रकाबा से गुरुद्वारे थी, सिर्फ अरदास के लिए, बाबा जी की ब्लेसिंग्स लेके। फिर उसके बाद हम जो राइड करते हैं पूरी ग्रुप राइड है, तो एवरीबॉडी इज फॉलोइंग द लीडर हु इज लीडिंग द राइड। अगर मैं सबसे आगे लीड कर रहा हूँ तो आई विल गिव देम द सिग्नल कि आगे कोई ब्रेकर आ रहा है, कोई रॉन्ग साइड पे आ रहा है, कोई गलत चला रहा है आगे, आई गिव देम अ सिग्नल। कहीं पे स्टॉप लेना है, आई गिव देम अ सिग्नल, तो वो लोग वहाँ पे रुक जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। और हम सब हमेशा राइड करते इकट्ठे होते हैं, हार्डली 200-300 मीटर का डिफरेंस होता है हमारे सब में, ताकि एक जो पीछे बंदा आ रहा है वो आगे बंदा देख सके। इफ एनीथिंग मिस हैपन तो अदर पर्सन इज देयर विद हिम। आप ये बताइएगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए साइकिलिंग करना ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इससे घुटनों पर बड़ा असर पड़ता है। मेरा ये कहना है कि यस, बुजुर्गों के लिए बिल्कुल, ये फिटनेस के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप सही तरीके से साइकिल चलाएं, सही उसका जो मेजरमेंट्स हैं या आपकी हाइट के हिसाब से जो आपका सैडल हाइट है उसको आप बिल्कुल ठीक तरीके से रखें और आप चलाएं। आई एम माई सेल्फ 53 और मैं चलाता हूँ और मैंने 2.5 साल पहले ही चलानी शुरू करी है एंड आई हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट मोर देन 15 kgs ऑफ वेट द टाइम आई स्टार्ट, जब से मैंने राइड करनी शुरू करी थी और आज की डेट में।
तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है फिटनेस के लिए अगर बंदा साइकिलिंग करे, क्योंकि इसमें आपके सारे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट होता है, इंक्लूडिंग लेग्स, हैंड्स पे प्रेशर पड़ता है, शोल्डर्स पे पड़ता है, बैक आपकी रहती है, तो इट्स अ टोटल बॉडी फिटनेस एक्सरसाइज। देखिए, साइकिल चलाने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में साइकिल चला सकता है, बट कौन सी साइकिल उसके लिए सही है वो जब चलाना शुरू करेंगे तब उनको मालूम होता है। जैसे अलग अलग तरह की साइकिल आती हैं, हाइब्रिड आती है, एमटीबी आती है, रोडी आती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, तो उनके लिए एमटीबी साइकिल या हाइब्रिड साइकिल ये सही रहती हैं, वो आराम से चला सकते हैं। और उसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? Yes, I would like to add upon one more important thing is कि लोगों की परसेप्शन होती है कि एक एज के बाद उनके ना घुटने जो है थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। For them, cycling is the best form of exercise. घुटनों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है साइकिलिंग, more than even walk, because आपका घुटना जो मूवमेंट में आता है ना, तो उसके अंदर ब्रीदिंग इंक्रीज होती है। तो घुटनों के लिए साइकिल तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। डॉक्टर्स ऑल्सो प्रिस्क्राइब कि अगर आपको कुछ घुटने की दिक्कत हो जाती है तो आप साइकिलिंग से शुरू करो, धीरे धीरे साइकिलिंग शुरू करो, ग्रेजुअली शुरू करो, 8 किलोमीटर से शुरू करो, 10 किलोमीटर से शुरू करो, एंड ट्राई टू इंक्रीज योर डिस्टेंस ओवर द डे। मैं इस पे एक बात ऐड करूँगा, चाहे मेरी उम्र अभी 40 साल की है, ऐसे बहुत से यंगस्टर्स हैं यहाँ हमारी एज के जो हैं जिनके घुटनों में आज की डेट में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मेरे भी घुटनों में कभी कभी पेन होता था। आज से जब मैं बात कर रहा हूँ अपने 4-5 साल पहले जब मैंने साइकिल शुरू नहीं की थी, आप यकीन मानिएगा कि जब से मैंने साइकिल शुरू की है मेरे घुटनों में पेन जो है अब वो बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि रनिंग से क्या होता है, आपके घुटनों पे जोर पड़ता है, साइकिलिंग से वो इम्पैक्ट नहीं आता। तो एज कोई भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको साइकिलिंग जरूर करनी चाहिए। अच्छा जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। आई एम 51 ईयर्स ओल्ड, और जब मैं 34 का था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरा लिगामेंट टेयर हो गया था राइट नी में, एंड 3-4 साल तक मैं कोई भी अपनी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाया। उसके बाद अब मैं जब 5 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ, मेरे घुटने में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है एज फार एज लिगामेंट टेयर इज ऑल्सो कंसर्न। तो ये उसको भी ओवरकम करता है, साइकिलिंग उसको भी ओवरकम करती है। मैंने अभी मतलब हर टाइप की एंड्योरेंस राइड कर चुका हूँ, 200 किलोमीटर से लेकर 1400 किलोमीटर की एंड्योरेंस राइड कर चुका हूँ, और उसमें मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये तो बड़ा अच्छा बताया आपने, लोगों की आशंकाएं दूर कर दी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे देश में कोई भी शहर ले लो, वहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक्स हैं और लोग साइकिलिंग करने से घबराते हैं, तो आपका क्या विचार है? वो तो ज़रूरी है, ट्रैक्स जब होएंगे बंदा सेफ रहेगा तो साइकिलिंग उससे अच्छा रहता है। बट ये पॉसिबिलिटी तो गवर्नमेंट की तरफ से होगी अगर हो पाएगी तो। अब जैसे दिल्ली में कई जगह ऐसे एरिया बने हैं जिन्होंने साइकिलिंग ट्रैक बनाए हैं, और जब वो साइकिलिंग ट्रैक ख़त्म हो गया तो उसके बाद आपको फिर दोबारा उसी रूट पे ही चलना पड़ता है। तो उसके लिए तो अवेयर होना तो बहुत ज़रूरी है, और जो टाइम लगेगा वो टाइमिंग तो गवर्नमेंट और पब्लिक का अगर कोई सपोर्ट है तो होगा। साइकिलिंग करने से जितनी बेनिफिट आपको खुद को मिलेंगे दूसरों को नहीं मिल पाते। आज इस कार्यक्रम में साइकिलिस्ट के परिवार भी यहाँ पे उपस्थित हैं और उन्हीं के साथ ही साइकिलिस्ट का सम्मान किया गया स्मृति चिन्ह देकर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने पत्नियों की किस तरह से सहायता करती हैं? इंडिपेंडेंट ने लाइक मैनू कोई परेशानी नहीं देंगे, मॉर्निंग में अपने आप चले जाते हैं। एंड मोरल सपोर्ट ये है कि मैं सिर्फ पिछू अरदास कर दे कि जिवें ग्रुप चल रहा है चलता रहे और वाकई में खुशी खुशी आ गए। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? सेम जी यही कह के जाना यार कि अरदास करनी है, सारे ग्रुप की चढ़ती कला है। अच्छा, आपसे मैं खास पूछना चाहता हूँ कि आपके पति कैंसर वॉरियर हैं, तो जब इन्होंने साइकिलिंग करने की कोशिश की उसके बाद तो आपके मन में क्या विचार आया? मैंने यही लगा कि वाहिगुरु ने उन्होंने अच्छा हिंदी च मैं हिंदी पढ़ा दोबारा पूछना। आपके पति तो कैंसर वॉरियर हैं, तो आपको तो बहुत फिक्र हुई होगी जब वो साइकिलिंग करने के लिए गए, तो क्या विचार आपके मन में है? क्योंकि उस परम परमात्मा पर पूरा विश्वास था कि उसने एक रास्ता बनाया इनके लिए कि इनमें जीने की जो इच्छा है वो साइकिल ग्रुप के साथ जुड़कर वो और अधिक बढ़ गई, और कहीं ना कहीं जो एक ये नया परिवार मिला उसने इन्हें इतनी खुशियाँ और इतना सपोर्ट दिया है कि शायद वो उस कैंसर को पीछे हटाकर आगे बढ़ रहे हैं।
और वाहिगुरु हमेशा उनके साथ है, सबके साथ। और इसीलिए मैं पूरे ग्रुप के लिए अरदास करती हूँ। जब भी जाते हैं ये लोग, पूरे ग्रुप के लिए अरदास होती है कि वाहिगुरु जिवें सारा ग्रुप गया है ओमे ही सही सलामत सारे अपने घर आ जा सके। आपकी अरदास तो वाहिगुरु ने मान ली, बड़े अच्छे तरीके से ये पूरी करके आए और आज उसी के लिए यहाँ उनका सम्मान किया जा रहा है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप बताइए कि साइकिलिंग का आपका अनुभव क्या है और क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी साइकिलिंग करें? नहीं, बिल्कुल साइकिलिंग जिस तरीके से ये ग्रुप हमारे को सपोर्ट करता है, दैट इज़ मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे भी इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें। ये सेहत के लिए भी उनकी अच्छा रहेगा और जो संगत मिलती है उस संगत से उनका जो मनोबल है वो भी बढ़ेगा और वो भी एक सही रास्ते को अपने जीवन में निभा पाएंगे, कर पाएंगे। आप चाहती हैं आपके बच्चे भी साइकिलिंग करें? हाँ जी, ज़रूर। एक्चुअली साइकिलिंग के साथ मेंटली भी बहुत सुकून मिलता है। मतलब आजकल की लाइफ में जैसे हम देखते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस वर्क है या कोई भी वर्क है, ये कि मतलब हम सेल्फ के लिए कुछ तो कुछ कर रहे हैं, ठीक है। साथ में मतलब सबसे बड़ी बात है जब हम एक टीम के साथ जुड़ते हैं ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है और कुछ हटके कर रहे हैं। और जब सबका सपोर्ट होता है तो उससे मेंटली खुशी तो मिलती है और हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है साइकिलिंग के थ्रू। तो और दूसरी बात है, जैसे हम कार्स में या मतलब बाय एयर ट्रिप्स पे जाते हैं तो इससे हम अपनी जो कंट्री के मतलब इवन शहर क्या गांव क्या एक गली गली को मतलब फील कर सकते हैं कि क्या फील है उसके अंदर। और हर जगह का खान पान रहन सहन मतलब अलग अलग होता है। मतलब मेन गुरुद्वारे मतलब दी जो इतिहास है, ठीक है, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें है वो एक क्लोजली असी उन्हें फील कर पाने हैं, वो साइकिलिंग दे थ्रू बहुत अच्छी तरह। आपका मतलब ये है कि पिलग्रिमेज हो जाता है और फिर भ्रमण भी हो जाता है देश का? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फिजिकली भी बॉडी ਨੂੰ स्ट्रॉन्ग करते हैं एंड मेंटली। वाहिगुरु जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ टीम ਨੂੰ इनकी टीम को बहुत आगे लेके जाए। आप साइकिलिंग करते हैं तो आप ये बताइए कि इससे सामाजिक लाभ क्या है? सामाजिक लाभ मेरे लिए क्या है कि मैं ग्रुप से जुड़ा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ। ग्रुप के थ्रू मैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशनल लोगों से भी मिलता हूँ। प्लस मैं अपनी सोसाइटी को भी मोटिवेट कर रहा हूँ कि मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ आएँ, जुड़ें, बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। मैं अपनी वाइफ को भी मोटिवेट करता हूँ कि लेट्स राइड टुगेदर, कुछ क्वालिटी टाइम मिलेगा। यही मेरे को लगता है कि सामाजिक लाभ है हमारे लिए। आप क्या समझते हो कि इसको साइकिलिंग को और रोचक कैसे बनाया जाए? रोचक कैसे बनाया जा सकता है, या आप स्टूडेंट्स को अपने साथ इंक्लूड करना स्टार्ट कीजिए और हम रैंडमली इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज हो सकते हैं जहाँ पे लाइक दिस की यू कैन टेल कि नेक्स्ट राइड क्या होगी और वहाँ पे कैसे आपके इन्वॉल्वमेंट्स रहेंगे, ये एक्सपीरियंस वगैरह को शेयर करना, थोड़ा सा एक्टिविटीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Maybe this could, help us improving the women's also socialization. ये तो मैं सिफारिश करूंगा इन ग्रुप से कि आपको भी उसमें इंक्लूड करें और जब आप कहीं जाएं साइकिलिंग यात्रा पे तो साथ में लेके जाएं। मुझे लगता है कि उसमें हमें एक टेंडम बाइक ऐड कर देनी चाहिए। टेंडम में 2 लोग चलाते हैं एक साथ, हस्बैंड वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आपको चलाना है पूरा थ्रू आउट। लेट्स सी कितना कोऑर्डिनेशन है आपस में। बहुत रोचक बात है, बहुत दिलचस्प बात है। इससे हो जाएगा, एक्चुअली इससे रोचक हो जाएगा। Thank you. Thank you. Cycling is his passion, and providing him the best food, healthy food, is the one which is my job. And the best, that is the thing that is my responsibility for him, for his health. तो वो मेरी ड्यूटी करती है। और सबसे बड़ी बात कि हर सेल्फ इज अ साइकिलिस्ट। ये भी साइकिलिंग करती है। आप साइकिलिंग स्पोर्ट्स करती हैं? Yeah, I do cycling. I am into cycling, and it was during COVID when I actually started with cycling. It was through Turbinators only that I started, and I am also part of Turbinators, but it's on and off. I go with them after COVID. Definitely less, but yes, that time it was very regular, very regular. जी आप कुछ कह रहे थे? वही है कि बेसिकली टर्मिनेटर के साथ जुड़ के
हम दोनों ने ही पहले मैंने शुरू करी, फिर मुझे देखते देखते इन्होंने शुरू करी साइकिलिंग, और फिर ऑपरेट नाउ ये भी अपनी इंडिविजुअल राइड्स करती हैं और मैं तो करता ही हूँ टर्मिनेटर्स के साथ, तो शी इज़ ऑल्सो एन इंडिविजुअल साइकिलिस्ट। जब हम साइकिलिंग को एज अ डेस्टिनेशन प्लानिंग के हिसाब से जोड़ देते हैं तो हम डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं और रास्ता हमारा बहुत आराम से निकल जाता है। अगर हम जिम के अंदर साइकिल अपना या एक्सरसाइज जोन से वो प्लान करके चलें तो वो एक पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन हो जाती है, उसमें अपने टारगेट्स होते हैं। लेकिन जब हम साइकिलिंग किसी गुरुद्वारे की तरफ या किसी डेस्टिनेशन ओरिएंटेड हम करते हैं तो हमको रास्ता का ज़्यादा पता नहीं लगता और डेस्टिनेशन पे पहुंचने की जो अचीवमेंट होती है वो हमारे लिए सुप्रीम होती है। और उस चीज़ की वजह से हम अपनी डेस्टिनेशन जो है उसको फर्दर एक्सटेंड करते जाते हैं। वाहिगुरु की कृपा से 5 तख्त हमने साइकिल पे कवर किए हैं और हमने शुरुआत अमृतसर से की थी जो लगभग 500 किलोमीटर था। फिर हमने तलवंडी साबो और अनंतपुर साहिब कवर किया, फिर हमने हिम्मत की पटना साहिब जाने की और फिर नांदेड़ साहिब जो फारदेस्ट है फिर हमने उस पर कोशिश की। एक माइंडसेट भी हमारा खुल गया कि आप जितनी भी डेस्टिनेशन जो है उसको आप चूज़ कर सकते हैं और हम कर लेंगे, क्योंकि गुरु साहब पे हमको विश्वास है कि उनका हाथ हमारे सर पे है और हम उनकी ब्लेसिंग से कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं, कोई भी डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। तो हमने 5 गुरुद्वारे कवर किए हैं, रब का शुक्र है जी। ये बहुत अच्छा काम किया है और अब आप वो एक समय आ गया है जब आपको इंटरनेशनल हो जाना चाहिए। आप ननकाना साहब भी जाएं, आप पंजा साहब भी जाएं। जरूर जी, गुरु साहब की कृपा रही तो वहाँ पे भी डेफिनेटली करेंगे। हमने टर्मिनेटर्स द पैडलर्स ग्रुप पर जो वीडियो बनाया था उस दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था, तो मैं समझता हूँ कि जब हमने उस दिन ये शुरू किया तो हमें गुरु नानक देव जी की शिक्षा को आगे बढ़ाने का भी कार्य हमारे पर आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कार्य उन्होंने किया, वननेस की बात की, सेल्फलेस सर्विस की बात की, कंपैशन की बात की, तो आप किस तरह से साइकिलिंग के ज़रिए उनकी इन बातों को और समाज को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? बेसिकली जो हमारा टर्मिनेटर्स द पैडलर्स ग्रुप है जो हमने 2016 में स्टार्ट किया, तो ये बेसिकली हमने हेल्थ और फिटनेस को लेके स्टार्ट किया कि लोगों को हम मोटिवेट करें अपने साइकिल से, लोग हमारे को देख के मोटिवेट हों और एनकरेज हों और साइकिल को अपने डेली जीवन में लेके के आएँ। तो बेसिकली जैसे हम और जो राइड्स जो करते हैं वो हम गुरुधामों की राइड करते हैं, ताकि जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं जो गुरुधाम नहीं गए हुए उनको उन स्थानों के बारे में पता लगे, उन स्थानों की शिक्षाओं मैसेज के बारे में पता लगे, और जहाँ जहाँ लोगों से हम रास्ते में मिलते हुए जाते हैं तो वहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ पर भी हम लीफलेट्स या किसी तरह की बात हम जरूर करते हैं ताकि संदेशा जो हमारा वो पहुँचता रहे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज देख रहे हैं आजकल समाज में कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यूक्रेन लड़ रहा है, रशिया से लड़ रहा है, उधर इजराइल की लड़ाई हो रही है फिलिस्तीन के साथ में। तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो गुरु नानक देव जी ने काम शुरू किए थे अंततः शांति के लिए किए थे, अंततः शांति के लिए। तो इसको आज के समाज में आप इससे आगे बढ़कर, अब चाहे आपको ज़रूरत पड़े कि कहीं से आपको स्पॉन्सर मिले कोई, उसके लिए हम देखने वालों को वो कह भी सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी इस तरह के कार्य के लिए आप भी साइकिलिस्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस लेवल पर आप कैसे आएंगे? हम हमेशा चाहेंगे साइकिलिंग जो हमारा एक हम कहेंगे हमारा एक वेपन है, हम इसको एक शांति के लिए यूज़ करें। शांति के जो लोग जैसे कोई ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाते हैं, हम ज़रूर उनके पास जाते हैं, उनकी सपोर्ट में राइड करते हैं और ब्लड भी डोनेट करते हैं। या अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कोई शांति के लिए आगे आके काम कर रही है, हम ज़रूर उसकी अवेयरनेस के अपनी साइकिल के थ्रू करना चाहेंगे। तो वो हमारे लिए एक साइकिल से एक अवेयरनेस बढ़ती है और लोगों को एक कैश मिलता है जो लोगों को पता लगता है। HWPN एक साउथ कोरिया की NGO है जो वर्ल्ड पीस पर काम करती है, जो सेसेशन ऑफ वार पर काम करती है, और अंततः उनको उसमें 120 से भी ज़्यादा देश शामिल हैं और वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। उनका एक ग्रुप भी है, एक IPYG ग्रुप है जो कि यूथ ग्रुप है, इंटरनेशनल पीस यूथ ग्रुप, और वो भी इस पर काम कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि किसी तरह से
आप भी ऐसे ग्रुप में शामिल हो। उनके करोड़ों लोग इस मुहिम में शामिल हुए हैं और ये जो टर्मिनेटर्स दी पैडलर्स का ग्रुप है ये भी उनसे प्रेरणा लेके उनमें शामिल हो सकता है और वो काम कर सकता है जो मैंने अभी पुरी साहब से पूछा कि हम वर्ल्ड में पीस कैसे स्थापित कर सकते हैं। आपका क्या? बिल्कुल, जैसे अभी हम मजनू का टीला गुरुद्वारा साहब के लॉन में खड़े हैं तो अभी एक शब्द चल रहा है, बाबा आखे काजियाँ शुभमला बाजो दोनों रोज। तो कहीं ना कहीं जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं जो टारगेट लेके वो चल रहे हैं वर्ल्ड पीस का कि दुनिया के सभी मुल्कों में आपस में समन्वय और शांति स्थापित हो, तो गुरु साहब जो है आज से 570-75 साल पहले यही बात जो है हमें सिखा रहे हैं। जो अभी शब्द भी चल रहा है, जो बैकग्राउंड में अगर आप सुनेंगे तो कर्मों के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि कर्म जो है वो निर्धारित करते हैं कि आप कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं और समाज को दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये बात सही है कि 554 साल हो गए हमारे गुरु नानक देव जी को प्रकट हुए, तो उनकी इन बातों को आगे बढ़ाने के लिए अब दायित्व हम लोगों पर है जी। और कहीं ना कहीं टर्बोनेटर्स जो है इसी मिशन पे निकले भी हुए हैं कि हम जो है समाज को गुरु साहब की टीचिंग्स के साथ जोड़ना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि गुरु साहब ने अपनी ज़िंदगी कैसे जी और समाज को क्या दिया। और आपको हैरानी होगी कि कोविड के दौरान जो समाज के एक्सपीरियंस हैं वो टर्बन्स को उससे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हम जितनी ज़्यादा एक बंदा हम कभी उनसे मिले नहीं, लेकिन वो सड़क पे एक डेढ़ घंटा खड़े होके वेट करके हमारे लिए रिफ्रेशमेंट लेके आए हुए थे। और उन्होंने ये बात भी हमने रिकॉग्नाइज की कि उन्होंने ये बोला कि सर कोविड में सिख कम्युनिटी ने या टर्बन्स ने जो समाज की सेवा की है वो हमारे लिए एक आइडियल है। जी हाँ, लंगर की बात आपने की तो इसी तरह से ऑक्सीजन का लंगर भी लगाया जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, लोगों की जानें बचाई। बिल्कुल, हमने देखा कोविड के दौरान पहले ही फेज में कि जो हॉस्पिटल्स के कैंपस के अंदर बाउंड्री वॉल के अंदर लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प के दुनिया छोड़ने को मजबूर हुए। और इसी से प्रेरणा लेके सिख कम्युनिटी ने सिर्फ प्रसादी का लंगर ही नहीं, ऑक्सीजन लंगर का एक नया जो वो स्थापित किया, ट्रेंड स्थापित किया और उससे बहुत समाज के लोगों को पैदा भी हुआ। और आज तक वो लोग जो हैं इस चीज़ को याद करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। हम कभी लोकल राइड भी करते हैं ना अगर आउटर दिल्ली में, तो लोग बुला के कहते हैं कि सर 10 मिनट के लिए हमारे घर आओ, हम लस्सी की सेवा करेंगे। हम मतलब वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी आइडियोलॉजी समझना चाहते हैं जो हमें गुरु साहब ने विरासत दी थी, जिसे हम भूलते जा रहे हैं कि मानस की जात सबे एक ही पहचान, एक ही स्वरूप सबे एक ही बनाओ। आपने बिल्कुल सही बात की है और आपका उदाहरण तो बिल्कुल सबसे बढ़िया उदाहरण है कि आप जो है कैंसर के से पीड़ित होते हुए भी आपने ये काम किया, तो आपसे ज़्यादा कोई इस बात को समझा नहीं सकता। बिल्कुल सर, ये जो मैं आज अगर चढ़ती कला पंजाबी कहते हैं, चढ़ती कला में ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो उसके पीछे जो है मेरे टर्मिनेटर ग्रुप के सभी साथी हैं जिनके देखा देखी हमने जो है ज़िंदगी से हमारा प्यार बढ़ा और समाज के अपने बारे में छोड़ के समाज के बारे में सोचना जो हमें गुरुजी ने सिखाया था, जो हम पहले अपनी ज़िंदगी में टर्मिनेटर्स से जुड़ने से पहले भी कर रहे थे, लेकिन टर्मिनेटर्स के साथ जुड़ के एक नए अंदाज में साइकिलिंग करते हुए हम सोसाइटीज़ के साथ जुड़ रहे हैं। और हमें पता चल रहा है कि सिख कम्युनिटी को समाज कैसे उनके कामों को, उनकी सेवा को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो हम घर में नहीं फील करते थे वो हमने पटना साहब राइड में भी फील किया, और जब अभी हम नांदेड़ होके तो रास्ते में जो हमारी सेवा भावना हमने देखी समाज की टर्मिनेटर्स के प्रति, उससे हमें लगा कि नहीं, गुरु नानक को दुनिया जानती है, समाज जानता है और उनकी टीचिंग्स और उनके स्वरूप को भी वो हम हमारे टर्मिनेटर के स्वरूप के साथ जोड़ते हैं और देखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ग्रुप साइकिलिंग यात्रा के ज़रिए
एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं और पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं। आज शांति की पूरे विश्व में बहुत ज़रूरत है। देश आपस में लड़ रहे हैं, अशांति है, कहीं कुपोषण है, कहीं एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को में सुधार लाने के लिए ये ग्रुप एक बड़ा योगदान दे सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और आपने अगर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, और आज के वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि हम ये संदेश पूरे विश्व तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।